علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اونٹوں کی زکوٰۃ کی تفصیل بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اور یہ چیز طالب علم کے زمانے میں ہم پڑھتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ دوبارہ اس کو یاد دہانی کے لیے میں آپ کے سامنے اونٹ کی زکوٰۃ کی تفصیل لے کر ناظرین، آپ یہاں پر دیکھ رہے ہو کہ اونٹ کی زکوٰۃ کی تفصیل۔ سب سے پہلی بات ہم یہاں پر لکھیں اونٹ کی تعداد، اس کا مقدار زکوٰۃ، یعنی اونٹ کے تعداد، اونٹ کتنے ہونے سے کتنے اونٹوں پر زکوٰۃ لاگو ہوتا ہے، اس کی تفصیل یہاں پر آئے گی جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، 1 سے لے کر 4 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 سے لے کر 9 تک اگر اونٹ ہے تو 1 بکری اس پر زکوٰۃ دیا جائے گا۔ 10 سے لے کر 14 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں تو آپ زکوٰۃ 2 بکریاں دیں گے۔ 15 سے لے کر 19 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں تو آپ ان اونٹ پر 3 بکریاں زکوٰۃ دیں گے۔ 20 سے لے کر 24 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں تو آپ 4 بکریاں زکوٰۃ میں دیں گے۔ 25 سے لے کر 35 تک یہاں پر ایک بات سمجھ کر جو ہے ہم آگے بڑھیں گے، جو آگے جو ہے ویڈیوز میں اور آگے جب سمجھانے کی بات آئے گی تو وہاں پر آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ بات کیا بات ہے کہ بنت مخاض کس کو کہتے ہیں؟ بنت مخاض اونٹنی کا 1 سالہ مادہ بچہ، اونٹنی کا 1 سالہ مادے بچے کو بولتے ہیں بنت مخاض۔ یہاں پر میں لکھا ہوا ہوں، دیکھ لیجیے، بنت مخاض اونٹنی کا 1 سالہ یا 1 سال کا مادہ بچہ۔ مادہ بچہ کس کو کہتے ہیں؟ جو فیمیل بچے کو کہیں گے مادہ بچہ، اور نر بچے کو کہیں گے میل بچہ، میل فیمیل۔ جس طرح دیگر مخلوقات میں میل فیمیل ہوتے ہیں، اسی طرح اونٹ میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں تاکہ ان کی نسل آگے بڑھے۔ اسی طرح بنت لبون، یہ اونٹنی کا 2 سال کا مادہ بچہ۔ بنت لبون کس کو کہیں گے؟ اونٹنی کا 2 سال کا مادہ بچہ۔ اس کے بعد آتا ہے حقہ، اونٹنی کا 3 سال کا مادہ بچہ۔ اس کے بعد آتا ہے جزعہ، اونٹنی کا 4 سال کا مادہ بچہ، اونٹنی کا 4 سال کا مادہ بچہ۔ یہ ہو گیا بنت مخاض، بنت لبون، حقہ، جزعہ۔ پھر ہم اصل اپنے ٹاپک پر چلتے ہیں۔ ہم یہاں تک پڑھ لیے تھے 24 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں تو آپ جو ہے 4 بکریاں زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح 25 سے لے کر 35 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں تو آپ 1 بنت مخاض دیں گے۔ بنت مخاض یہاں پر آپ کو زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔ 36 سے لے کر 45 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں تو آپ 1 بنت لبون دیں گے۔ بنت لبون اونٹنی کا 2 سال کا مادہ بچہ۔ 46 سے لے کر 60 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں تو آپ زکوٰۃ 1 حقہ دیں گے، یعنی اونٹنی کا 3 سال کا مادہ بچہ۔ 61 سے لے کر 75 یعنی 75 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں تو آپ اس پر زکوٰۃ 1 جزعہ دیں گے۔
इसी तरह एक जिज़ा किसको कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि ऊँटनी का जिज़ा किसको कहते हैं, ऊँटनी का 4 साल का मादे बच्चे को जिज़ा बोलते हैं। तो 61 से लेकर 75 तक अगर आपके पास ऊँट हैं तो आप जो है 4 साल का ऊँटनी का मादा बच्चा आप जो है ज़कात पर देंगे। इसी तरह 76 से लेकर 90 तक अगर आपके पास ऊँट हैं तो आप जो है 2 बिन्त लगून देंगे। यहां पर बात समझकर हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह कि कायदा है जब 40 ऊंट हो जाए 40 पर 1 बिन्त लगून दिया करते हैं। यहां पर हम पढ़ चुके हैं 36 से लेकर 45 तक 1 बिन्त लगून देते हैं। तो उसी तरह 40 फिर और एक 40 उसमें जब हम ऐड करेंगे तो 2 बिन्त लगून यहाँ पर, यानी 76 से लेकर 90 तक 2 बिन्त लगून देंगे। इसी तरह 91 से लेकर 120 तक 2 हिक्का। यहाँ पर भी एक कायदा है कि जब 50 ऊंट हो जाते हैं 50 ऊंट पर 1 हिक्का देते हैं। यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं 46 से लेकर 60 तक के बीच में 50 का नंबर आता है और 50 ऊंट पर 1 हिक्का दिया जाता है। इसी तरह यहाँ पर 120 हो गया, 91 से लेकर 120 हो गया तो यहाँ पर 2 हुक्का देंगे हम। 50 पर 1 हुक्का होता है, यहाँ पर डबल हो गया 100 हो गया, यानी 90 से 91 से लेकर 120 तक का बीच का हिस्सा 100 नंबर आता है। 50-50 मिलाकर तो हम उस पर जो है 2 हुक्का देंगे। इसी तरह यहाँ पर नोट पढ़कर जो है हम आगे बढ़ते हैं, उसी बात को हम दोहराते हैं जो यहाँ पर हम पढ़े थे 2 बिंदु लगून और 2 हिक्का के बारे में। जब ऊंटों की तादाद 120 से ज्यादा हो जाए तो हर 40 बकरियों में 1 बिन्त लगून और हर 50 बकरियों में 1 हिक्का ज़कात वाजिब है। मिसाल जो यहाँ पर दिया गया देखो 120 से लेकर 129 तक अगर आपके पास ऊंट हैं, 121 से लेकर 129 तक अगर आपके पास ऊंट हैं तो आप जो है 3 बिन्त लगून देंगे। क्यों 3 बिन्त लगून देंगे? इसलिए कि 40 पर 1 बिन्त लगून और एक 40 पर और 1 बिन्त लगून और एक 40 पर और 1 बिन्त लगून। तो हम 1 बिन्त लगून, 2 बिन्त लगून, 3 बिन्त लगून हो गए। हर 40 पर 1 बिन्त लगून दिया करते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पर 3 40 हो गए तो 3 बिन्त लगून दिया जाएगा। 40 प्लस 40 80 प्लस 40 120। यहाँ पर 120 से लेकर 130 तक यानी 121 से लेकर 129 तक अगर आपके पास जो है ऊंट है तो आप 3 बिन्त लगून देंगे। इसी तरह 130 से लेकर 139 तक अगर आपके पास ऊंट है तो आप 1 हिक्का देंगे, 2 बिन्त लगून देंगे। वो कैसे हो गया 1 हिक्का 2 बिन्त लगून? यहां पर मैं आपको समझाता हूं। 130 कैसे बनता है? जब हम 2 40 लाएंगे और 1 50 लाएंगे तो 130 बनेगा। 40 प्लस 40 80 प्लस 50 80 50 130। तो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं नीचे कि हर 50 पर नोट यहाँ पर दिया गया है कि हर 50 बकरियों में 1 हिक्का ज़कात वाजिब है। हर 50 ऊंट पर आप जो है 1 हिक्का देंगे। 1 हिक्का किसको बोलते हैं? यहाँ पर पढ़ चुके हैं आप ऊंटनी का 3 साल का मादा बच्चा, इसको हिक्का कहेंगे। तो 50 पर 1 हिक्का दिया जाता है। यहाँ पर 130 कैसे बना? 40 प्लस 40 80 प्लस 50 130 हो गए।
अब 40 पर एक बिन्त लबून देते हैं, और एक 40 आ गए तो 2 बिन्त लबून हो गए, और एक 50 आ गए तो एक हिक्का हो गए। तो यहाँ पर एक हिक्का 2 बिन्त लबून। इसी तरह 140 से लेकर 150, 140 से लेकर 149 तक अगर आपके पास ऊंट हैं तो आप दो हिक्का देंगे, एक बिन्त लबून देंगे। 2 हिक्का कैसे हो गए यहाँ पर? इसलिए कि 140 कैसे बनता है? 140 यहां पर मैं बता के दिखाऊं। 250 100 हो गए। हम जब उस पर 40 ऐड करते हैं तो एक बिन्त लबून। 250 पर दो हिक्का और 140 पर एक बिन्त लबून। तो यहाँ पर 2 हिक्का और एक बिन्त लबून। यहाँ पर हिसाब में लिखा हूं, आप देख लीजिए। इसी तरह 150 से लेकर 159 तक आपके पास अगर ऊंट हैं तो आप जो है 3 हिक्का देंगे। अच्छा, 150 का आंकड़ा कब कैसा बनता है? 150 जब 3 50 होते तो 150 बनते हैं। तो 1 50 पर एक हिक्का दिया जाता है। यहां पर 3 50 हैं तो 3 हिक्का देंगे आप, ठीक है। इसी तरह 160 से लेकर 169 तक आपके पास ऊंट हैं, 4 बिन्त लबून देंगे। 4 बिन्त लबून कैसा हिसाब है? 4 बिन्त लबून का 160 कैसे बनता है? 40 + 40 80 + 40 120 + 40 160। जब यहाँ पर 4 40 आ गए तो यहाँ पर जो है 4 बिन्त लबून देंगे, 4 बिन्त लबून। ये जो है ऊंट की ज़कात की तफसील थी जो मैंने आपके सामने बताने के लिए ये वीडियो बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह हमको इस्लामी ज़कात के, इस्लाम के ज़कात के निज़ाम को समझकर और उस पर अमल करने की तो हमें तौफीक नसीब फरमाए। अगर आपको जो है किसी चीज़ का डाउट है, आप जो है कमेंट्स बॉक्स में जो है आप जो है कमेंट्स करके मुझे सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में आपको जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।